Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. On the Haridwar stampede incident, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami stated that an unfortunate tragedy had taken place at the Mansa Devi temple, where 6 people lost their lives and many others were injured due to panic caused by a rumor. He informed that a ministerial inquiry had been ordered to determine the cause and identify those responsible. The injured have been shifted to hospitals and rescue operations are ongoing. Dhami assured that strict action would be taken against anyone found guilty and that all possible efforts are being made to assist and treat the injured. आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla stated that India remained firm in its resolve to defend its integrity and combat any acts of war or terrorism. He mentioned that on 7th of May this year, India had launched Operation Sindoor against Pakistan. The operation, he said, targeted and struck several terror infrastructure located in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, which had been used to plan and execute terrorist attacks against India. He also paid tribute to Deepak Chingakam of the 7th Battalion BSF, a brave Manipuri soldier who had laid down his life for the nation in recognition of his supreme sacrifice. The governor informed that the government of Manipur had approved the appointment of his younger brother, Chingakam Nawab Singh, as an assistant house sub-inspector in the police force. 99. With the stand that India will always defend its integrity and fight against any act of war or terrorism, India had launched Op Sindoor recently against Pakistan on 7th of May this year. It was a response to the tragic incident of Pakistan-sponsored based terrorism that killed many innocent people in Pahalgam in J&K. The operation targeted and hit multiple terror infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, from where terrorist attacks against India were planned and executed. The mission, which destroyed 9 terror sites, is a testament of India's anti-terrorism stand. While standing in solidarity with the families of those who have lost their lives while defending our country, I would also like to salute the brave soldiers of India who have sacrificed their lives in protecting our motherland. The dedication and service to the nation by our brave Manipuri soldier Deepak Chingakam of the 7th Battalion BSF will always be remembered with pride. As a recognition of his supreme sacrifice for the nation, the government of Manipur has approved the appointment of his younger brother, Chingakam Nawab Singh, as an assistant sub-inspector in the police. Tragic stampede occurred at the Mansa Devi temple, resulting in the deaths of 6 people and leaving several others injured. The injured are being rushed to the nearby hospitals for urgent medical treatment. Authorities are on the scene managing the situation and rescue efforts are underway. Further details about the cause of the stampede and the condition of the injured are awaited.
Union Minister of Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya said that to mark Kargil Vijay Divas, the Sunday on cycle event had been organized from Sabarmati Ashram to Gujarat Vidyapeeth, a route regularly used by Mahatma Gandhi. He mentioned that members of the armed forces had participated in the event, reinforcing the message that Sunday on cycle served as a health mantra, referring to the Prime Minister Modi's call for Fit India. He added that the event was being held every Sunday in alignment with that vision. He appealed to all Indians to dedicate at least 1 hour each day to cycling. कारगिल विजय दिन के उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ यानी कि महात्मा गांधी जी जहां से साइकिल से रेगुलर आया जाया करते थे वो रूट पर हुआ। इस संडे ऑन साइकिल में देश के आर्म फोर्सेस ने ज्वाइन करा, हमारे साथ साइकिलिंग करा और देश को संदेश दिया कि संडे ऑन साइकिल एक फिटनेस का मंत्र है। जब आप पेडल लगाते हैं तब आप स्वास्थ्य का मंत्र को चरितार्थ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का नारा दिया है और विकसित भारत का संकल्प रखा है, लेकिन विकसित भारत के संकल्प में देश के नागरिक को फिट रहना बहुत आवश्यक है। नागरिक फिट रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए मोदी जी के फिट इंडिया के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए समग्र देश में हर संडे साइकिलिंग करी जाती है। आज 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग का कार्यक्रम करके फिट इंडिया को आगे बढ़ाया है। मैं देश के सभी नागरिक को आग्रह करना चाहता हूँ, सभी जनप्रतिनिधि को आग्रह करना चाहता हूँ, सभी अधिकारी को आग्रह करना चाहता हूँ, हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग करिए। कारगिल विजय दिन के उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ यानी कि महात्मा। Speaking on the tragic school roof collapse incident in Jhalawar, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat stated from Jodhpur, Rajasthan, the strict action would be taken against those found guilty. He emphasized that need to assess the structural safety of all such schools and public buildings. Shekhawat mentioned that the Rajasthan government had already instructed the concerned authorities to carry out audits of all government schools across the state to prevent similar incidents in the future. दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें?
देखिए, मुझे लगता है कि विषय दोषियों पे कार्रवाई करने का नहीं है। सरकार का काम है, जांच होने के बाद में निश्चित रूप से जो कोई लोग होंगे उनके प्रति उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ये विषय है कि हम ऐसे सारे विद्यालयों का, ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो पाए। और राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों का इस तरह का ऑडिट करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? Following the tragic stampede in Haridwar that claimed 6 lives, District Magistrate Mayur Dikshit stated that initial investigations through photos and videos revealed a rumor about a broken electric wire may have triggered the chaos. He clarified that there was no visible indication of any actual wire-related incident upon examining the injured and deceased. Dikshit confirmed that ministerial inquiry will be initiated to identify who spread the rumor that led to the stampede. Authorities will review camera footage and other evidence to determine the cause and hold those responsible accountable. The death of 6 individuals has been officially confirmed. देखिए, इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई हमको कोई ऐसी जो घायल हैं या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। सर, कितने लोगों की कैजुअलिटी है और किस तरह अभियान चलाया जा रहा है? अभी तक 6 लोगों की कैजुअलिटी हमारी कंफर्म हुई है, कुछ सीरियस घायल है, उनका इलाज जिला अस्पताल हरिद्वार में और कुछ को हमने रेफर भी किया। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आपका जो प्लान है? देखिए, आप आगे अभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हमारे सब जगह कैमरे हैं उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर, कहाँ पर ये हादसा हुआ, कौन सा मार्ग है, क्या ये मनसा देवी का सीढ़ी मार्ग है, पैदल मार्ग है, जहाँ पर ये हादसा हुआ। क्या है? देखिए, इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई हमको कोई ऐसी जो घायल हैं या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। सर, कितने लोगों की कैजुअलिटी है और किस तरह अभियान चलाया जा रहा है? अभी तक 6 लोगों की कैजुअलिटी हमारी कंफर्म हुई है, कुछ सीरियस घायल है, उनका इलाज जिला अस्पताल हरिद्वार में और कुछ को हमने रेफर भी किया। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आपका जो प्लान है? देखिए, आप आगे अभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हमारे सब जगह कैमरे हैं उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर, कहाँ पर ये हादसा हुआ, कौन सा मार्ग है, क्या ये मनसा देवी का सीढ़ी मार्ग है, पैदल मार्ग है, जहाँ पर ये हादसा हुआ। क्या है? देखिए, इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई हमको कोई ऐसी जो घायल हैं या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाएगी। BJP MP Arun Govil and Uttar Pradesh Minister Kapil Dev Agarwal today flagged off the Vande Bharat train at Hapur station, marking its first official halt at the location. The move is expected to significantly ease travel for passengers heading to key destinations like Lucknow, Ayodhya and Varanasi. Speaking at the event, Arun Goyal praised the initiative, calling it a commendable step by the government. The stoppage at Hapur brings a great convenience not only for the residents of Hapur but also for those in Ghaziabad, he said, expressing gratitude to Prime Minister Narendra Modi and Railway Minister Ashwini Vaishnav for the ongoing progress of Indian Railways. सरकार की बहुत अच्छी पहल है जनता के लिए। पहली बात तो वंदे भारत यहाँ हमें मिली मेरठ से लखनऊ, और दूसरी बात यहाँ इसका स्टॉपेज मिल गया हापुड़ में। हापुड़ वासियों के लिए, गाजियाबाद वासियों के लिए, सभी के लिए बहुत सुविधा हो गया है। और इस तरह से रेलवे का विकास हो रहा है हमारे देश में, उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।
और अभी जैसे इस ट्रेन को वाराणसी तक भी वंदे भारत को वाराणसी तक भी पहुंचाया गया है, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत ज़्यादा कोशिश रही है और सबकी कोशिशें कामयाब हुई है। यहाँ हमारे मंत्री जी भी हैं, कपिल देव जी, उन्होंने भी बहुत इसके लिए प्रयास किए। सभी के प्रयासों से ये दिन आ गया है और आशा है कि और इसी तरह से विकास होता रहेगा। यहाँ पे सरकार की बहुत अच्छी पहल है जनता की। Reacting to India's upcoming clash with Pakistan in Asia Cup 2025, former Indian cricketer captain and Congress leader Mohammad Azharuddin remarked that if bilateral cricket ties between the two nations are suspended, international matches should also be reconsidered. My stand is that if you are not playing bilateral events, then you should not play international events either. He said on July 26. However, he added that the final call would rest with the government and Board of Control for Cricket in India. Fixtures has been announced. India and Pakistan. India and Pakistan have been indulged in the same group, and first match with India-Pakistan is going to be scheduled on September 14. अच्छा, तो ये तो आईसीसी का इवेंट है या एसीसी का है मेरे ख्याल में, एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का। तो ये मैं इसमें तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अगर हो तो हर चीज़ होना चाहिए, या नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक ये मेरा मानना है। बट लेकिन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, बोर्ड क्या डिसाइड करेगी, वही होगा। सर, वेटरन क्रिकेट में तो वेटरन क्रिकेटर्स खेलने के लिए मना कर दिया, क्या अगर एशियन कप में आमना सामना होना से भी अलग होना चाहिए इंडियन टीम को? नहीं, अलग नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि ये तो देखिए, ये तो बोर्ड का मामला और गवर्नमेंट का मामला है इसमें, क्योंकि ये जो वेटरन का है वो ऑफिशियल नहीं है, वो आईसीसी का कोई नहीं है, ना किसी से नहीं, वो तो एक प्राइवेटली हो रहा है। तो बट लेकिन ये जो एसीसी का है ये तो बोर्ड का है, तो बोर्ड और एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप का है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। Delhi Chief Minister Rekha Gupta reflected on her long-standing association with the Chowpal initiative, a community outreach and support program. She recalled that during her early days as a municipal councillor, a Chowpal event was organized in Hyderpur, where senior BJP leader Arun Jaitley was present. Gupta highlighted how at that time loans under the Chowpal initiative were extended to hundreds of women. With the Jaitley's supporters, she praised the program, saying she had appreciated it then and continues to be an admirer of it today. चौपाल वर्षों से मेरा इससे जुड़ाव रहा। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार निगम पार्षद थी, हैदरपुर क्षेत्र में हमने चौपाल का कार्यक्रम किया। स्वयं अरुण जेटली जी आए थे और अरुण जेटली जी के हाथों से सैकड़ों बहनों को हमने चौपाल का ये ऋण दिया था। तब भी मैं इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा करती थी और आज भी मैं इसकी प्रशंसक हूँ। अनेकों अर्थशास्त्री यही सोचते रहते होंगे कि भाई ये चौपाल के माध्यम से हजारों महिलाओं को जो सहयोग दिया जाता है उसमें से चुटकी भर भी लोग बेईमानी नहीं करते, पूरा का पूरा लोन यूं का यूं वापस देते हैं। मेरी बहनों की ईमानदारी देखो, अपना व्यापार भी बढ़ाती हैं, लोगों को रोजगार भी देती हैं और पाईयाना संस्था को वापस भी करती हैं। ऐसी चौपाल वर्षों से मेरा इससे जुड़ाव रहा। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार निगम पार्षद थी, हैदरपुर क्षेत्र में हमने चौपाल का कार्यक्रम किया। स्वयं अरुण जेटली जी आए थे और अरुण जेटली जी के हाथों से सैकड़ों बहनों को हमने चौपाल का ये ऋण दिया था। तब भी मैं इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा करती थी और आज भी मैं इसकी प्रशंसक हूँ। अनेकों अर्थशास्त्री यही सोचते रहते होंगे कि भाई ये चौपाल के माध्यम से हजारों महिलाओं को जो सहयोग दिया जाता है उसमें से चुटकी भर भी लोग बेईमानी नहीं करते, पूरा का पूरा लोन
यूं का यूं वापस देते हैं। मेरी बहनों की ईमानदारी देखो। अपना व्यापार भी बढ़ाती हैं, लोगों को रोजगार भी देती हैं और पाईयाना संस्था को वापस भी करती हैं। ऐसी चौपाल वर्षों से मेरा इससे जुड़ाव रहा। मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार निगम पार्षद थी, हैदरपुर क्षेत्र में हमने चौपाल का कार्यक्रम किया। स्वयं अरुण जेटली जी आए थे और अरुण जेटली जी के हाथों से सैकड़ों बहनों को हमने चौपाल का ये ऋण दिया था। तब भी मैं इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा करती थी और आज भी मैं इसकी प्रशंसक हूँ। अनेकों अर्थशास्त्री यही सोचते रहते होंगे कि भाई ये चौपाल के माध्यम से हजारों महिलाओं को जो सहयोग दिया जाता है उसमें से चुटकी भर भी लोग बेईमानी नहीं करते। पूरा का पूरा लोन यूं का यूं वापस देते हैं। मेरी बहनों की ईमानदारी देखो। अपना व्यापार भी बढ़ाती हैं, लोगों को रोजगार भी देती हैं और पाईयाना संस्था को वापस भी करती हैं। Commenting on the 124th episode of Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat program, Union Minister Sukant Majumdar said that the Prime Minister had truly demonstrated his deep respect for Khudiram Bose. He described Bose as one of the great individuals who sacrificed their lives for India's freedom and betterment, and praised the Prime Minister for honoring his legacy through the national broadcast. The Honorable Prime Minister has really showed his respect towards Khudiram Bose, and he was the one of the luminaries who devoted their life for the betterment of this country, for the independence of this country. You see, this Operation Sindoor is the testimony of the bravery and the valor of our armed forces, three wings of armed forces. So obviously, our children should know about it in their curriculum, and I believe that will also inspire them to participate, to join Indian armed forces in their future life. The Honorable Prime Minister has really showed his respect towards Khudiram Bose, and he was the one of the luminaries who devoted their life for the betterment of this country, for the independence of this country. You see, this Operation Sindoor is the testimony of the bravery and the valor of our armed forces, three wings of armed forces. So obviously, our children should know about it in their curriculum, and I believe that will also inspire them to participate, to join Indian armed forces in their future life. Speaking on the 124th episode of Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat program, BJP MP Bansuri Swaraj said the broadcast has evolved into a people's movement. She noted that the program has especially resonated with the country's youth, who now look forward to it with the excitement and anticipation. मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए देश का युवा उत्साहित होता है और प्रतीक्षा करता है कि वो संडे, जो महीने का आखिरी संडे, वो कब आएगा और आधे घंटे का एक कैप्सूल मिलेगा जो देश में आत्मविश्वास और आशावादी जनता को दोबारा एक मुहिम उनके मन में जलाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये हमारे देश के सैन्य बल का प्रदर्शन था, ये देश के आत्मविश्वास का प्रदर्शन। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मॉनसून सत्र हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महोत्सव है। कल आपको ये डिस्कशन में भी परिलक्षित होकर दिखेगा। मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए देश का युवा उत्साहित होता है और प्रतीक्षा करता है कि वो संडे, जो महीने का आखिरी संडे, वो कब आएगा और आधे घंटे का एक कैप्सूल मिलेगा जो देश में आत्मविश्वास और आशावादी जनता को दोबारा एक मुहिम उनके मन में जलाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये हमारे देश के सैन्य बल का प्रदर्शन था, ये देश के आत्मविश्वास का प्रदर्शन। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मॉनसून सत्र हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का महोत्सव है। कल आपको ये डिस्कशन में भी परिलक्षित होकर दिखेगा। मन की Responding to the Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi's remarks, accusing the government of a rush to earn blood money by allowing an Indian-Pakistan Asia Cup match, Congress leader Vijay Vannativar said her statement was justified. He questioned the government's actions following Operation Sindoor, asking why the show-off, from where did the terrorists come and how did they return, and after that delegations went abroad. Vannativar argued that if Pakistan is considered an enemy, then playing a match against them contradicts that stance. He accused the government of inconsistency, saying there is a difference in what they think and what they do, and added that the matter would be raised in parliament. This government has confused people, he concluded. वो प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप को लेकर आक्षेप उठाया। उन्होंने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान अगर मैच खेल रहे हैं तो हमें फिर क्यों भेजा गया था प्रदेश। सही है, ये दिखावा करने के लिए क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? टेररिस्ट कहाँ से आए और टेररिस्ट आने के बाद में टेररिस्ट मिले क्यों नहीं? वो किधर से आए, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गुजरे, किस रास्ते से वापस गए? ये सब जो दिखावा, ये अपना दिखावा किया गया, और ये जब सच्चाई सामने आई कि ये टेररिस्ट पकड़े नहीं जाते और दो देशों के बीच एक दरार सी पैदा हो गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब इनको भेजा गया कि हम सच कर रहे, हिंदुस्तान की नीति सच्चाई पर रास्ते पर चलती है। ये बात इन्होंने क्या फॉरेन पॉलिसी जो है इस बारे को लेकर वो प्रदेश में बहुत सारे डेलीगेशन भेजे गए। अब ये डेलीगेशन भेजने के बाद अगर पाकिस्तान अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? क्यों दुबई में जाके ये मैच होनी चाहिए? तो ये सब जो है ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ इसके सिवा करना आता नहीं। दिखावा अलग करते कुछ है, मन में कुछ है और करते कुछ है। इस तरह की इनकी राजनीति रही है। अब ये जो मैचेस हो रहे, वो मैचेस की जरूरत है क्या? तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? क्यों दुबई में जाके ये मैच होनी चाहिए? तो ये सब जो है ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ इसके सिवा करना आता नहीं। दिखावा अलग करते कुछ है, मन में कुछ है और करते कुछ है। इस तरह की इनकी राजनीति रही है। क्यों दुबई में जाके ये मैच होनी चाहिए? तो ये सब जो है ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ इसके सिवा करना आता नहीं। दिखावा अलग करते कुछ है, मन में कुछ है और करते कुछ है। इस तरह की इनकी राजनीति रही है। अब ये जो मैचेस हो रहे, वो मैचेस की जरूरत है क्या? तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हुआ है उसकी चर्चाएं अभी पार्लियामेंट में होने जा रही, उसके लिए होगी। अभी तो पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, कितना समय देंगे। पर एक है कि देश के लोगों को ये डेलीगेशन भेजकर गुमराह करने की बात ये सरकार ने की है। लोगों को गुमराह किया है, लोगों को बेवकूफ जैसे समझकर ये सरकार काम कर रही है। यही मैसेज इस माध्यम से प्रियंका जी ने दिया है। वो प्रियंका चतुर्वेदी ने That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.